Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 13 of this playlist, Dynamic Programming from Scratch, we are going to see longest common subsequence top-down approach. Okay, so previous videos we have seen longest common subsequence, its problem statement, then its recursion form, then its memoization DP approach. Okay, we have also coded all these things. So if you haven't seen those videos, just go and watch these videos, because अगर हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उसके सारे कितने टाइप्स के होते हैं, मेमोजाइज, टॉप डाउन, सारा चीज़ें अगर हम फ्लुएंट हो जाएंगे, सो फॉर ऑल दोज वेरिएशंस ऑफ एलसीएस, जितने भी वेरिएशंस हैं, ठीक है, उन सबको हम बहुत ईजिली करने वाले हैं आगे. तो दैट्स वाई जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियोज़ एंड get regular in this video also. Okay, so watch this video also full, and then after that we will go and see longest common subsequence variations in further videos. So before starting, I have a general information about Newton School. Let's just go and see that, and after that we will begin with our video. So Newton School, these in this month only, that is of August, have organized a grand coding contest for you. Is going to organize this contest, and you can just go and register for free in this contest, and there are cash prizes for you. There are hiring partners which are going to hire via this contest. Okay, so you can just go and sign up for free or log in for free and just go and register in this grand coding contest. They have cash prizes of 5 lakh, like for first and second and third prize they have 50k, 25k and 15k cash prize. And not only this, for other top performers also, they have Amazon gift vouchers, and they have amazing goodies with them to distribute among you after this contest. Okay, so you can just go. There are also job opportunities for you. Just go register for free and participate and check your abilities via this contest. Okay, second thing, if you haven't checked this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel. There are amazing playlists for you for free, like DP, for DSA, for programming languages, C++, JavaScript, for everything. Just go subscribe this channel and get regular updates in these playlists. Okay, now let's just start with today's video. So we are going to see longest common subsequence. Okay, हमें ये पता है longest common subsequence होता क्या है, हमें उसका रिकर्जन कैसे लिखना है, longest common subsequence का रिकर्जन कैसे लिखना है हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है उसका मेमोइजेशन कैसे करना है, रिकर्जन का ही मेमोइजेशन कैसे करना है, ठीक है, ताकि वो रिकर्जन से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और वो डीपी बन जाए. ठीक है, मेमोइजेशन भी एक काइंड ऑफ डीपी है ना. अब हम इसमें रिकर्जन को एलिमिनेट करने वाले हैं. ठीक है, इस डीपी की अप्रोच से रिकर्जन को एलिमिनेट करने वाले हैं, और हम सिंपल सी टॉप डाउन अप्रोच लिखने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, ताकि हम आगे की जितने भी वेरिएशन है एलसीएस के, उन सबको टॉप डाउन अप्रोच से करने वाले हैं. ठीक है, दैट्स वाई ये वीडियो पूरा देखना, और टॉप डाउन कैसे लिखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, ये भी समझना. ठीक है, तो ये रही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की. अगर नहीं पता तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके पढ़ लो, और रिकर्जन और मेमोइजेशन नहीं पढ़ा तो जाके प्रीवियस वीडियोस में यू कैन सी. ना टॉप डाउन अप्रोच में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑब्वियसली पूरी प्लेलिस्ट यहीं से चलती आ रही है. ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले कुछ स्टेप्स रिकर्जन, और पहली चीज़ रिकर्जन. ठीक है, और रिकर्जन हमें पता है, लाइक हमारी चॉइस डायग्राम क्या है, तभी हमें रिकर्जन पता है, सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं ना. फाइन. सेकेंड थिंग, हमें वेरिएबल स्टेट्स काउंट करनी है. वेरिएबल स्टेट्स जिसका हम बनाने वाले हैं डीपी में स्टेट्स. ओके, लाइक डीपी में हम कौन कौन सी वेरिएबल स्टेट्स के लिए कौन कौन सी स्टेट्स लेने वाले हैं, ये चीज़ अभी और समझ में आएगी तुम लोगों को. ठीक है, तो अगर नहीं आई, लाइक मैं 2D डीपी बनाने वाला हूँ, 3D डीपी की एरे बनाने वाला हूँ, 1D डीपी की एरे बनाने वाला हूँ, ये किस में डिपेंड करेगा, इन वेरिएबल स्टेट्स में, या फिर वेरिएबल इनपुट्स यू कैन से. ओके, फाइन. थर्ड थिंग, हमें ये समझना पड़ेगा कि करंट स्टेट डीपी की हम कैसे अपडेट करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो थर्ड स्टेप होता है. अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई तो तुम सिंपली टॉप डाउन अप्रोच डीपी की लिख सकते हो ईजिली. ठीक है, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं. तुम डीपी में बस ये समझ लो कि जो भी तुमने वेरिएबल स्टेट्स डीपी एरे में बनाई है, सपोज तुमने 2D डीपी एरे बनाई. ठीक है, इसका साइज रखा तुमने n रोज और m कॉलम्स की. अब तुम्हें खाली ये समझना है कि तुम डीपी ऑफ i j, ये तुम्हारी मान लो कोई एक
स्टेट है जहां पे तुम्हारी रोज आई है और कॉलम जे है, ठीक है। तुम इसको अपडेट कैसे करने वाले हो, तुम डीपी ऑफ आई जे को क्या सपोज कर रहे हो, तुमने डीपी ऑफ आई जे को क्या माना है और तुम उसको कैसे अपडेट करने वाले हो, एंड दिस इज इट। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस ईजी है, ठीक है। तो अब LCS क्वेश्चन के लिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के लिए, हम ये इन स्टेप्स को कैरी ऑन करते हैं, फिर उसका हम कोड लिखने वाले हैं, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लो LCS था, ठीक है, मैं रिकर्जन फंक्शन बनाता था, अगर रिकर्जन फंक्शन लिखता था तो उसमें कौन कौन से इनपुट लेता था, 2 स्ट्रिंग लेता था, ठीक है, x और y, फिर उनके साइज लेता था जो कि इंटीजर फॉर्म में होंगे ऑब्वियसली स्ट्रिंग के साइज। स्ट्रिंग की जगह तुम एरे भी ले सकते हो, लाइक फॉर जनरल मैं अभी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, उसके साइज होते थे सपोज m और n, ठीक है, जहाँ पे m x की लेंथ है और n y की लेंथ है, फाइन। अब इसमें स्ट्रिंग x और y तो सेम रहने वाली पूरे प्रोसेस में, है ना, स्ट्रिंग x और y थोड़ी बदल जाएंगी, बदलेंगे तो साइज। करंट स्टेट में हम कितनी स्ट्रिंग की, कितने साइज की स्ट्रिंग x और कितने साइज की स्ट्रिंग y कंसीडर कर रहे हैं, ये मैटर करेगा, है ना। दैट्स वाई इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ मैटर करने वाली है। तो वी कैन से कि हमारे पास एक डीपी एरे में 2 स्टेट्स की डीपी एरे बनानी है, तो हम बनाएंगे 2D डीपी एरे और उसमें 2 स्टेट्स रखेंगे। दैट इज फर्स्ट स्टेट कैन बी रो, ठीक है, वो x एरे के लिए, x स्ट्रिंग के लिए भी हो सकती है या फिर y स्ट्रिंग के लिए भी हो सकती है। मैंने m लिखा है तो यू कैन से कि ये काइंड ऑफ स्ट्रिंग x को डिनोट करेगी। सेकेंड थिंग विल बी n, ओके, ये काइंड ऑफ स्ट्रिंग y को डिनोट करेगी, फाइन, ओके। अब फॉर सेफर साइड कि मुझे मान लो इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में 0 से होती है और मैं इसको m+1 और n+1 कर लेता हूँ, ठीक है, फाइन। तो मैंने इसको फॉर सेफर साइड की इंडेक्सिंग 1 2 3 4 मुझे 1 से m तक साइज मिले, मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। और अभी इसका मेन मतलब इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक डीपी एरे बना ली ऐसी। अब मेरे शुरुआत के 2 स्टेप जो थे वो तो यहीं से क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप बचा, मुझे डीपी ऑफ आई और जे डिनोट कैसे करनी है, मैं इसको क्या सपोज करके चल रहा हूं और मैं इसमें क्या अपडेट करूंगा, क्या इसकी वैल्यू रखूंगा, ये मुझे समझना है, ठीक है, फाइन। तो अब ये कैसे मैं जानने वाला हूं ये देखते हैं। मैंने सिंपली बोला कि मैं एक 2D डीपी एरे बना रहा हूं m+1 और n+1 की, ठीक है। तो मैं अगर 2 स्ट्रिंग्स ले लूं यहाँ पे, मैं इसको क्लियर कर दूं अगर यहाँ पे, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 2 स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फाइन। मैंने 2 स्ट्रिंग्स ले ली, एक x एक y। x में मैंने दिया a b c d, y में दिया मैंने a c d p, ठीक है। इसका साइज कितना हो गया 4, इसका साइज हो गया 4, ठीक है। मैंने बोला कि अब मैं 5x5 की एक डीपी एरे बनाने वाला हूं, तो मैंने 5x5 की लेट्स सपोज एक डीपी एरे बना ली, ठीक है, ये बना ली मैंने, ठीक है, फाइन। और इंडेक्सिंग कुछ ऐसे होगी इसकी, ओके। अब लेट्स से कि ये मैंने n+1 के लिए रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी n+1 स्ट्रिंग आ जाए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इन इंडेक्सेस की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूं अगर मैं, a c d b, ठीक है, और 1 इंडेक्स से रखनी है तो a c d b, ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं 1 इंडेक्स से ये एरे लिख दूं अगर, ठीक है, स्ट्रिंग्स लिख दूं यहाँ पे, तो a b c d, ठीक है, फाइन। ना व्हाट आई कैन डू इज, मैं डीपी ऑफ आई जे में अब क्या स्टोर कर सकता हूँ ये देखो। हाउ आई कैन स्टोर डीपी ऑफ आई जे में स्टोर क्या कर सकता हूँ। तो LCS में मैंने अभी तक क्या बताया था कि जैसे मैंने मेमोइजेशन देखा था, मेमोइजेशन में हम क्या कर रहे थे कि डीपी ऑफ आई और जे में मैं क्या स्टोर कर रहा था, रिकर्जन और मेमोइजेशन में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैं स्टोर कर रहा था लेंथ of LCS when I have used I length of string x and j length of string y, ओके। तो मैं रिकर्जन और मेमोइजेशन में ये कर रहा था। जब मैं डीपी ऑफ आईजे में मैं स्टोर क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली, LCS की लेंथ ऑफ LCS या फिर यू कैन से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ जो मुझे एज अ आंसर देना है, फाइन। जो इन दोनों का अगर मैं आंसर देखूं तो LCS की लेंथ कितनी आएगी,
दैट विल बी 3, ठीक है फाइन। तो लेंथ LCS की स्टोर कर रहा था, और जब मैं DP ऑफ IJ में जब मैं आई लेंथ की अगर मैं बोलूं कि DP ऑफ 3 2, ठीक है, तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग ए विल बी ABC एंड 2 लेंथ की स्ट्रिंग Y विल बी AC। इन दोनों स्ट्रिंग में जो भी मेरी LCS की वैल्यू होगी वो मैं DP ऑफ 3 2 में स्टोर करूंगा एज एन एग्जाम्पल, ठीक है फाइन। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो कहां पे आ जाएगा, दैट विल बी इन सिंपली DP ऑफ NM, है ना। DP ऑफ NM मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो उसका आंसर क्या है, DP ऑफ NM अकॉर्डिंग टू दिस एरे, DP एरे, है ना। टॉप डाउन अप्रोच में DP ऑफ NM विल गिव मी द आंसर ऑफ मेन प्रॉब्लम, LCS प्रॉब्लम, जहां पे मैं n लेंथ की स्ट्रिंग x यूज करने वाला हूं, ओके। और यू कैन से DP ऑफ MN, क्योंकि मैंने m+1 n+1 की बनाई है, तो लेट्स जस्ट सिंपली टेक इट एज DP ऑफ MN विल गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पे m लेंथ की स्ट्रिंग x यूज कर रहा हूं, n लेंथ की स्ट्रिंग y यूज कर रहा हूं, ठीक है, और ये मुझे दे देगा लेंथ ऑफ LCS, ठीक है फाइन। अब मैंने सिंपली ये भी पता लगा लिया कि DP ऑफ IJ किस चीज को डिनोट कर रहा है ना। अब DP ऑफ IJ को अपडेट कैसे करेंगे, तो अगेन अपडेट करने का सिंपल सा मेथड यही होता है कि जो तुम्हारे रिकर्जन तुमने लिखा था, ठीक है, रिकर्जन में जाओ, उसका जो बेस केस है, अगर मैं सिंपली लिखूं, जैसे कि तुमने रिकर्जन ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, रिकर्जन लिखा तुमने, तो रिकर्जन में तुम्हारे पास 2 चीजें आती हैं, एक तो आता बेस केस, सेकेंड थिंग तुम्हारे पास आती है चॉइस डायग्राम की केसेस, है ना। बेस केस से तुम सिंपली क्या करोगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ DP एरे। बेस केस को तुम कहां पे यूज करते हो, सिंपली इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस टॉप डाउन DP एरे, ठीक है। जो तुम DP एरे बनाओगे m+1 और n+1 की, तुम बेस केस का यूज करके उसका इनिशियलाइजेशन करोगे, ठीक है, और जो चॉइस डायग्राम है उसका यूज करके तुम अपडेशन करोगे, ठीक है। सिंपल से 2 चीजें होती हैं। अब ये करेंगे कैसे, तो हम रिकर्जन के कोड में चलते हैं और उसका यूज करके मैं जो बोल रहा हूं वो करके दिखाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो ये मेरे पास रिकर्जन का कोड है अभी तक, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि मैं इसका कैसे यूज करके लिखने वाला हूं अपना DP टॉप डाउन अप्रोच का कोड, ठीक है। तो मैं लिख के दिखाता हूं तुम लोगों को सीधे। लेट्स जस्ट से कि अभी के लिए मैंने ये जो था मेरा, ठीक है, मैंने इसको पूरा कमेंट आउट कर दिया, ये मेरा रिकर्जन का कोड था, ठीक, ये मेरा रिकर्जन का कोड था। मैंने एक DP एरे ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो मैं अब टॉप डाउन अप्रोच रख रहा हूं और अपनी DP एरे को यूज करके, ठीक है, जो ऊपर DP एरे ऑलरेडी बना लिया है, और ये रिकर्जन का कोड है मेरा, रिकर्जन मेमोइजेशन का, ओके। सो मेरे पास DP की एरे थी, मैंने रिकर्जन और मेमोइजेशन में ऑलरेडी DP की एरे लिख रखी थी, ठीक है, जिसकी स्टेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिफाइन कर दी, दैट विल बी DP ऑफ m+1 n+1, ठीक है, जहां पे m जो साइज है वो मैंने लिया है स्ट्रिंग x का, n जो साइज है वो मैंने लिया है स्ट्रिंग y का, ठीक है। अब मुझे कुछ इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे करते हैं, बेस केसेस से, है ना, बेस केस से इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो जहां पर भी m = 0 या n = 0 होगा, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, उस चीज का इनिशियलाइजेशन करना है। m = 0 और n = 0 का मतलब क्या, हम ये देख लेते हैं सिंपली। m = 0 है, इट मीन्स x की जो लेंथ है वो 0 है, और अगर ऐसा है तो तुम्हारी y की कोई भी लेंथ आए, y की कोई भी लेंथ मीन्स 1 से लेके y की, या फिर 0 से लेके, ठीक है, 0 भी एक पॉसिबल लेंथ है, 0 से लेके n तक कोई भी लेंथ आए y की, आंसर कितना रहेगा, 0। तो वही चीज मुझे यहां पे लिखनी है, तो मैंने वही लिखी, दैट इज अगर मेरी जो फर्स्ट स्टेट है वो अगर 0 है, दैट इज x की लेंथ, तो y की कोई भी आए, मैंने पूरा लूप इटरेट किया 0 से n तक, सबको 0 बनाया, ठीक है। अब मुझे सेम चीज y से वर्सा y स्ट्रिंग के लिए करना है, ठीक है। तो मैं वो चीज करता हूं, और ये हम सिंपली कर क्या रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच का कोड लिख रहे हैं, है ना, टॉप डाउन अप्रोच का कोड लिख रहे हैं। तो अब सेम चीज मुझे उसके लिए करनी है, तो आई विल सिंपली राइट इट लाइक दिस, कि अगर मेरी y स्ट्रिंग 0 है तो x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, x की लेंथ, x स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो जाए, वो चीज 0 ही रहेगी, ओके। सो आई मेड सिंपली दिस। अब मुझे जनरल केस जो मेरा है रिकर्जन का, दैट इज दीज 2 लाइंस, ये चीज लिखनी है। अब यहां पे देखो कि मैंने DP ऑफ
m और n को अपडेट कैसे किया है, ठीक है। तो मैंने सिंपली सबसे पहले सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज में आते हैं। पहला लूप मेरा कहां तक चलेगा, m+1 के लिए, है ना, ऑब्वियसली सारी लेंथ x की, सारी पॉसिबल लेंथ ऑफ x। दूसरा लूप चलेगा सारी पॉसिबल लेंथ ऑफ y, है ना। अब सबसे पहला केस मेरा क्या बनेगा, जब करंट कैरेक्टर मेरा इक्वल है, दैट इज i और j, तो आई विल सिंपली राइट लाइक इफ स्ट्रिंग ऑफ x का, ठीक है, अगर मेरा करंट कैरेक्टर इक्वल है तो आई विल सिंपली राइट लाइक dp ऑफ ij विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 प्लस dp ऑफ i-1 j-1। ओके फाइन। अदरवाइज मेरा केस क्या हो जाएगा, सिंपली dp ऑफ ij विल बी अपडेटेड एज मैक्स ऑफ dp ऑफ i-1 j, है ना, एंड dp ऑफ i j-1। सिंपल सी चीज है, जो चीज मैंने ऊपर लिखी है मुझे वही चीज लिखनी है, बस यहां पे जो m और n है, ओके, m और n मुझे क्या बता रहे हैं, करंट स्टेट ऑफ रिकर्जन, करंट जो सब प्रॉब्लम है उसकी स्टेट, और यहां पे i और j हो जाएगा वही चीज, जहां पे i और j को मैं क्या बोलूंगा, सारी पॉसिबल वैल्यूज पे वैल्यू अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो टॉप डाउन अप्रोच इज नथिंग डिफरेंट देन रिकर्जन और मेमोराइजेशन। बस हमें होता क्या है, रिकर्जन में जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उन सब के लिए हम लूप करते हैं और उन सब की वैल्यूज हम एक एक करके अपडेट कर देते हैं अपनी डीपी एरे में। तो यू कैन सी दैट दिस कोड इज फॉर टॉप डाउन अप्रोच ऑफ रिकर्जन, ठीक है। और यहां पे मैंने एक एक पॉसिबल अपडेट डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू अपडेट कर दी ऑलरेडी, फाइन। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, ऑलवेज आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एंड second thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, and I am updating these playlists regularly, okay, and just go and participate in Grand Coding contest if you didn't registered it yet, and won exciting prizes. They have exciting prizes for you. Thank you guys for watching.